ओके, सबसे पहले मैंने होमवर्क एसेलोनी से दिया था और कहीं से दिया था कि होमवर्क, या सिर्फ एसेलोनी से ही दिया था? डिड आई गिव डीपीटी आल्सो? यस सर। ओके ओके, चलेगा। तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। डीपीटी से बताओ, किसी को डाउट है क्या डीपीटी 1 से? डीपीटी का फुल फॉर्म जानते हो क्या? Daily practice test. Yes, thank you. Daily practice test. Okay. Now you guys have to be more interactive here. Initial start classes है. It's okay to ask any kind of doubt, silly doubt, कुछ भी रहेगा तो it's okay. You're welcome. Okay. Starting with the DPT 1, it had 10 questions. Any doubt in those 10 questions? Anybody? कल एक ने किसी ने WhatsApp भी किया था मुझे होमवर्क के solutions जिसमें थोड़े से mistakes थे. Let us just verify those. First question doubt है क्या किसी को? First question. Anybody in the class who has doubt with the first question? Nobody? First question was the toughest actually. थोड़ा confusing सा है. हाँ सर, explain कर सकते एक बार? हाँ, question है क्या सबके सामने? Do you guys have the question in front of you? Yes, sir. Okay. Can anybody tell me if anybody got this answer? Did anybody get the answer? First one? Okay. First one. Okay. Yeah, I will explain it definitely. In the meantime, I was asking, did anybody get the answer for the first one? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice, Manas. Okay. See, first thing, everybody should remember what was the relation between degrees and radians. What was the relation between degrees and radians? Pi upon 180 into degrees is equals to radians. That is true. और more basic version क्या है? Anybody else who can tell degree कितने degrees कितने radians के बराबर है? Sir, pi is equal to 180. हाँ, pi radians. Radians से pi. Pi radians is equals to 180 degrees. Okay, I hope everybody else remember this. Okay, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कितने डिग्रीज है और कितने रेडियंस है? इस क्वेश्चन में देखो, if d and r respectively denote the number of degrees and number of radians. तो बेसिकली नंबर ऑफ डिग्रीज d है बोल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ रेडियंस कितना है? r है. इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ सम वैल्यूज दे हैव ऑलरेडी यूज्ड सम सिंबल्स d and r. तो d डिग्रीज जो है वो r रेडियंस के बराबर है. दैट हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अभी ये दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग? हाउ कैन वी मैनिपुलेट दिस टू? कैन वी डू एनीथिंग? क्रॉस मल्टीप्लाई और एनीथिंग? वो यूनिटरी मेथड था ना, तो कैसे करेंगे इन दोनों को? लाइक Sir, d into pi. हाँ, d into pi is equals to what? R into 180. That is correct, r into 180. Anybody else who has doubt here? So d into pi equals to r into 180 is indeed the correct answer. इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है क्वेश्चन में. तो d into pi, तो राइट साइड r into 180 को ऐसे लिखा, r into 2 into 90 करके लिखा है, r into 2 into 90. अभी ये 90 को डिवाइड कर देते हैं, 90 को डिवाइड कर देते हैं, तो लिखे d upon 90. d upon 90 is equal to क्या बनेगा? r into 2 is basically 2r divided by pi. That is only the answer. D by 90 equals to 2r by pi. Whichever is the option, that is the right answer. So, but instead of using values, they have used some letters, D and R. Okay, moving on. DPT2, DPT1 का second question doubt है क्या किसी को? Anybody who has doubt in the second sum? No, sir. No sir. That's why I will reach the seventh question in a minute. Anybody who has doubt in the third question? Third question. डाउट है तो पूछो, बात नहीं कर रहे हो? खुशी, क्रिश, मानस, Sir, no doubt. निशिता. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. एनीबडी हु हैज डाउट इन द फोर्थ क्वेश्चन? एक को भी डाउट होगा तो बताओ. साद, Yes, sir, I have. यू हैव डाउट इन विच सम? Yes, sir. यस सर मतलब कौन से सम में डाउट है? So, fourth sum. फोर्थ वन. अच्छा, नाउ डू यू रिमेम्बर इनिशियल रे, टर्मिनल रे? Yes. ऋषांक, आई विल डिस्कस योर डाउट इन अ मिनट. अच्छा, इनिशियल रे और टर्मिनल रे है.
अभी इनिशियल रे मतलब यहाँ से एंगल मेजर करेंगे और टर्मिनल रे मतलब वहां पे रुक जाएंगे। अभी मान लेते कोई एंगल है, मान लेते कोई एंगल है से 60 डिग्री, 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री का इनिशियल रे ये रहा, टर्मिनल रे ये रहा। अभी तू ये बता, एक और एंगल 420 डिग्री, 420 डिग्री और यहां से चालू कर रहे, तो इसका भी टर्मिनल रे सेम रहेगा क्या? 420 डिग्री मतलब देख कैसे रहेगा 420 डिग्री, ऐसे फुल एग्जैक्ट घूमेंगे, फुल सर्किल घूमेंगे तो कितने डिग्रीज होगा? 360, 360, और उसको वापस से और 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 420. 420। तो 420 डिग्रीज का और 60 डिग्रीज का टर्मिनल रे सेम है क्या? हाँ सर. सेम है। तो अभी ये तो डायग्राम बनाए बिना बिना डायग्राम बनाए, इफ somebody asks me 60 डिग्री 420 डिग्रीज आर दीज टू को टर्मिनल, या फिर आर इन दोनों का टर्मिनल रे और इनिशियल रे सेम है क्या? अगर फाइनल रे और इनिशियल रे सेम है क्या अगर कोई पूछे, तो हाउ कैन यू टेल मैथमेटिकली विदाउट ड्राइंग द डायग्राम? how are these values related? How are these values related? सर by 360 degree कोटर्मिनल एंगल 360 डिग्री का क्या होना चाहिए? हाँ, माइनस 360 डिग्री होना चाहिए। इनफैक्ट दो एंगल्स, एक एंगल कुछ तो वैल्यू θ1 है, दूसरा एंगल θ2 है, दोनों का इनिशियल रे और फाइनल रे अगर सेम होना चाहिए तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का सब्ट्रैक्शन 360 डिग्रीज होना चाहिए। ना सिर्फ 360 डिग्री काफी है कि 720 डिग्री भी चलता है? सर 360 और मल्टीपल ऑफ 360. ये 360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, दैट इज। इस क्वेश्चन में एक एंगल क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 240. 240। अभी ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो सेम फाइनल रे है, मतलब हमें एक एक ऑप्शन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए ऑप्शन देख क्या है? ए ऑप्शन 60. हाँ, तो डू यू थिंक 240 डिग्री और 60 डिग्री का सब्ट्रैक्शन 360 का मल्टीपल है? नहीं. नहीं, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन बताओ, 240 डिग्री और किसका है सब्ट्रैक्शन? बी ऑप्शन का एंगल क्या है? -120. हाँ, 240 और -120 का सब्ट्रैक्शन क्या है? 360 होएगा इसका. बस, बिंगो। सो बी इज द राइट आंसर। ओके. Okay. Anyone else who has doubt in that sum? Fourth one? Okay. Next, moving on. Fifth question. Anybody who has doubt in the fifth question? No, sir. Okay. Sixth question. Sixth question, anybody? Yes, sir. No, Okay. sir. Yeah, एक को doubt होगा तो I'll solve it. Sixth question. Okay. Yes, Did you guys? sir. सानिया doubt है क्या? किसको doubt है? sir. Yeah. Sixth question. देखो क्या क्या बात कर रहे हैं? Can anybody read the question slowly for me? Okay, I will only The read it. difference of the two acute angles of a right angle triangle. Just a minute, just a minute. That is right so far. See, now what she has said is difference of the acute angles of a right angle triangle. You should understand all the words. Difference मतलब subtraction है. Acute angles मतलब क्या होता है? What are acute angles? Less than 90. 90. Less than 90. In fact, more than 0 also. More than 0 and less than 90 degrees. So, okay. Now, difference of acute angles of a right angle triangle. So, she is talking about a right angle triangle. So, we'll consider a right angle triangle. So, right angle triangle, let us call this triangle as ABC. ABC triangle ले लेते हैं. अच्छा, तो इसमें से कौन सा एंगल पता है? Sir, 90. एंगल सी 90 डिग्री होगा, एंगल सी 90 डिग्री होगा, वो कोई खास बात है ही नहीं। और एंगल ए एंगल बी एंगल सी में ऑलरेडी कोई रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है एबीसी में? हाउ आर एबीसी एंगल्स रिलेटेड इन ए Sir, A ट्रायंगल? minus B is 2 pi by 5. Oh, that has been given, I guess. Difference of the acute angles. So what he's saying is A और B का subtraction जो है वो 2 pi by 5 given है. This has been given in question. Okay, this has been given in question. But there is something which we know.
there's something which we know, relation between the angles. Angles of a Sum triangle. is equals to 180 degree. Yes, with sum a plus b plus c is equals to 180 degrees. This is already known to us. और abc में से c का वैल्यू भी पता है. c का वैल्यू कितना है? 90. Yes, c का वैल्यू 90 डिग्रीज है. c का वैल्यू 90 डिग्रीज है. तो फ्रॉम दिस वन कैन से दैट a प्लस b का वैल्यू कितना होगा? 90. 90 degrees. 180 minus 90. Yes, 180 minus 90 which is 90. And another angle is a minus b. a minus b दे रखा है 2 pi by 5. अभी देखो यहाँ पे unnecessarily एक डिग्रीज में है और एक रेडियंस में है. ओके, तो हम लोग या तो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे या तो रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे ताकि सेम यूनिट्स के साथ प्रैक्टिस करें. अभी ऑप्शंस कौन से डिग्री कौन से यूनिट्स में है? ऑप्शंस डिग्रीज में है कि रेडियंस में है? Radians. रेडियंस में है. Radian. तो 90 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? Pi by 2. Pi by Correct. 2. But you should do it orally यार. 180 degrees is pi radians. तो 90 degrees is obviously उसका आधा. तो 90 degrees is basically pi by 2. Pi by 2. अच्छा, अभी ढूंढना क्या है? A ढूंढना है कि B ढूंढना है? Sir, क्या ढूंढ- smallest angle. Smallest. Smallest. Do you think A Radius. is bigger or B is bigger? A. A is bigger because A minus B एक कुछ तो पॉजिटिव नंबर है, तो A बड़ा है या फिर B छोटा है. अच्छा, B ढूंढने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं कि सबट्रैक्ट करूं? Add. ऐड Add. करेंगे तो क्या मिलेगा? A मिलेगा ना. ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल होगा, A मिलेगा. लेकिन हमें ढूंढना B है, तो रैदर हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को. सबट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5. पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5. लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी. सबट्रैक्ट कर रहे दोनों इक्वेशंस को. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा? ब्रैकेट्स ओपन करके कैन यू डू दिस ओरली, दिस मच पार्ट? Okay. माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से आ जाएगा, फिर प्लस बी आ जाएगा. ए कैंसिल होकर 2b बचेगा ये. और इसको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एवरीबॉडी नोस. 5 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज पाई बाय 10. 1 पाई बाय 10. तो 2b इज इक्वल टू पाई बाय 10 और दैट विल इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दूंगा तो b इज इक्वल टू पाई बाय 20. सो दैट इज द आंसर. पाई बाय 20 वुड बी द आंसर. ओके, जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या? बेसिकली एडिशन ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, हमें दोनों नंबर ढूंढना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एनीबॉडी एल्स हु हैज डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, आई एम अज्यूमिंग साइलेंस मींस कोई किसी को डाउट नहीं है. सर तुम्हारे आप क्ला- 7 का पूछ रहे हो? क्या क्या? सर आप 7th वाले क्वेश्चन का पूछ रहे हो अभी? यस यस. नेक्स्ट डाउट. या 7th वाला करते हैं. 7th वाला और किसी को डाउट है क्या? Yes, sir. करते हैं 7th क्वेश्चन. ये erase कर दूं और should I wait for you to copy it down? Yes, sir. Wait, okay. You guys have to talk more, yeah. Sir, 6th question I did it in different method, sir. हाँ, बता कैसे? Sir, a minus b is 2 pi by 5. Correct. तो 2 pi by 5 को डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो 5 70 आया. a minus b is equal to 70. 70 है, 72 है, I'm not sure, but ठीक है. या move on. 72 डिग्री आएगा. 72 और हाँ. फिर सर एंगल a is equal to एंगल b is एंगल a is equal to 72 plus b और फिर बाद में किया. करेक्ट करेक्ट, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब डिग्रीज में करके लास्ट में फिर डिग्रीज में आंसर आएगा. शायद 9 डिग्री आता है शायद, फिर लास्ट में sir. फिर 9 डिग्री को वापस से रेडियंस में कन्वर्ट किया. गुड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. सी आई एम erasing this. Should I erase or should I wait? So wait. Okay, okay.
Was the homework more or less, or is it ज्यादा था होमवर्क की कम? लेस सर। कम था क्या? ओके ओके। और ज्यादा लोग आंसर दो तो अच्छा रहेगा। एक का मतलब वी कैन नॉट गो अकॉर्डिंग टू वन पर्सन्स ओपिनियन, बट स्टिल व्हाट टू डू, जिसने आंसर दिया उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर ज्यादा होमवर्क दूंगा नेक्स्ट टाइम। Some homework medium था। ओके ओके, शायद इरेज कर दूं ये। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 7. 7. ओके, स्वयं को भी डाउट था शायद। ओके, नाउ डिड यू गाइस डू यू हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू? क्वेश्चन Yes, Yes, sir. sir. angle between minute hand and hour hand of the clock at 3:30 p.m. Now 3:30 p.m. तो of course everybody must have seen a clock. 3:30 p.m. पे minute hand किधर रहेगा? At 6. Exactly, minute hand will be at the number 6. Minute hand will be at 90 the number, degree होगा sir. एक सेकंड, minute hand will be at the number 6. Agreed. अच्छा 3:30 p.m. की बात कर रहे हैं। अच्छा, now where will be the hour hand? 3. No. Will the Slightly. hour hand be at 3? Anybody who can confirm? Oh, 3 and 4 के बीच में होगा। यार hour hand भी थोड़ा थोड़ा मूव करते रहेगा। 3:30 It will be 3:30 पे hour hand below. किधर रहेगा? Yes, किधर रहेगा? Halfway of 3 and 4. हाँ, 3 and 4 के बीच में रहेगा। 3 and 4 के बीच में रहेगा। पहले this is what you have to realize. 3:30 बजे और 3:30 p.m. पे minute hour hand will be between 3 and 4. Between 3 and 4. That is the first thing that you should realize. अच्छा, now just for my curiosity, what will be the angle between 3 and 6? 3 and 6 के बीच का angle कितना रहेगा? Sir, 90. 90 degree. Now our answer, will it be less than 90 or more than 90? Less than 90. Less than 90. Okay, our answer will be less than 90. First thing that you have to realize, because our hand भी थोड़ा थोड़ा move कर गया। अच्छा ना, understand, total 3 to 6 के बीच का एंगल तुम लोगों ने बता दिया 90 डिग्री है। ओके, नाउ तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 का एंगल सेम रहेगा क्या? Sir, Yes, sir. 30. Yes. तो what he's saying is correct. 3, 4, 5, 6. So what he's saying is 4 to 5, 5 to 6 and 3 to 4, इन सबका एंगल ईच कितना रहेगा? 30 डिग्रीज रहेगा। ईच 30 डिग्रीज रहेगा। किसी को डाउट है क्या? टोटल 90 डिग्री का 3 पार्ट में डिवाइड किया, 30, 30 और 30। अच्छा, अभी अपने को एंगल ढूंढना है। 15 माइनस होगा 90 से। यस, सोचो यार, सोचो अभी एंगल कितना रहेगा? 75 degree। 75. क्या ही कह रहे हो? पहले 30 तो ऐड करेंगे, एक और 30 भी ऐड करेंगे, उसके अलावा और 30 ऐड नहीं करेंगे, 30 का आधा ही ऐड करेंगे। सो आंसर विल बी 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। वाई 15 समझ में आ रहा है कि 3 और 4 का आधा ही ऐड करना है। सो दिस इज द आंसर। ऐड करके जो आंसर आएगा, जिसको भी डाउट था Sir. क्लियर। हाँ बोलो। अगर मिनट हैंड पे कुछ लाइक 45 मिनट्स या वैसा कुछ होता तो फिर तब भी हम 15 ऐड करते क्या? मिनट हैंड पे क्या होता? तो अगर 45 मिनट्स लाइक 3:45 PM दिया ओ होता तो 3:45 है, तो 3:45 होगा तो यू हैव टू थिंक मोर कि आवर हैंड ना, मतलब 30 डिग्री जो है आधे घंटे में, सी मतलब जैसे कि एक घंटे में आवर हैंड कितना एंगल मूव करेगा? एक घंटे में 30 degrees, 30 डिग्री मूव करेगा। अच्छा, आधे घंटे में? 15 degrees, अच्छा, 15 मिनट में? 15/2. यस, 15/2। तो कैन यू थिंक इट इन दोज लाइंस? 3:45 पे मतलब 3:45 मतलब 6 का वैल्यू 9 पे चला गया, और आवर Yes, हैंड sir. और थोड़ा एंगल मूव कर गया, और आवर हैंड ना और एक 7.15/2 डिग्रीज और थोड़ा मूव करेगा। Okay, sir. Did you understand, Sanvi? You can think now. Yes, sir. ओके, जिसको डाउट था क्लियर हुआ क्या? ये
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, स्वयं तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ, ऐसा एक और 9th क्वेश्चन था, यू कैन डू द सेम आई गेस। Yes, sir. 9th क्वेश्चन 3:30 PM की जगह 8:30 PM है, यू गाइस डू इट योरसेल्फ, दिमाग खुद से लगा, हो जाएगा। वैसे आंसर क्या होगा 8:30 PM पे? 75 degree. सेम रहेगा, आर यू रियलाइजिंग? 3:30 और 8:30 पे यस सर। 8:30 मतलब इसका फ्लिप्ड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। एथ क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द आर्क। डू यू गाइस रिमेंबर these two formulae, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क? यस सर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है फॉर्मूला? सर थीटा बाय 360 into pi r square. वेरी गुड। और लेंथ ऑफ द आर्क? थीटा अपन 360 into 2 pi r. 2 pi r, when both of these are in degrees, both of these are in degrees. Okay, now in this 8th question एक बार पढ़ो क्या बात कर रहे हैं 8th क्वेश्चन के बारे में, जिसको डाउट था। ऋषांक, ऋषांक, am I pronouncing your name correctly or is it Vrishank or Rishank? Okay, 8th question, did I tell you that there is an error in the question? Yes sir. Sir. Now इस 8th क्वेश्चन में length of the arc has been given to us as 88 meters. Length of the arc has been given to us as 88 meters and theta का value has also been given. Theta का वहां पे टाइपिंग एरर था, theta का एक्चुअल वैल्यू 72 डिग्री था, theta का एक्चुअल वैल्यू 72 डिग्री था। ओके, अभी हमें रेडियस ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है। लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, थीटा दिया है और हमें रेडियस ढूंढना है और कुछ नहीं करना, अभी इस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डंप कर देंगे वैल्यूज। 88 इज इक्वल्स टू 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री into 2 into pi into r. This is the answer and we have to find the value of r. और पाई का वैल्यू भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में बोल दिया है। पाई को क्या लेना है? पाई को हम लोग ले लेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7। अभी इसके बाद तुम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Should I do it or will you be able to do at home? Sir, we will try. Okay. Jinil, you had a doubt? Okay, Jinil, कुछ रिप्लाई नहीं है बट ठीक है। Okay, you guys can do this. 9th question we just discussed, 8:30 पे कितना होगा? 10th question doubt है क्या? 10th question, anybody who has doubt? 10th question? नो सर। Okay. Okay, Jinil. चलेगा। Nice, DPT 1 हो गया। और DPT 1 के बाद SL लोनी भी दिया था, I guess. SL लोनी एग्जाम्पल्स कहाँ से, कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? 1 to 17। अच्छा, एग्जाम्पल्स 5 का दिया Example होगा। 5. Yes, examples 5, 1 to 17. Does anybody need help in those sums? सब प्रूविंग वाले आपने सम्स भेज है। दिया है ना, तो आपने वो सारे क्वेश्चंस का भेजा है। मैंने 1 to 30 सम्स का वो हिंट भेजा है और बाकी 1 to 17 ही होमवर्क मिला है। रिमेनिंग क्वेश्चंस का होमवर्क आज मिल जाएगा। ठीक है सर, हम वो नोट्स देके कर लेंगे। हाँ साद, और बाकी और किसी को हेल्प चाहिए क्या? मैंने वैसे उस पे डाला था डिस्कॉर्ड के ग्रुप पे, hints डाले थे। If you want, I can post it in WhatsApp group as well. Should I post it on WhatsApp also? Yes, sir. Okay, I'll do that. बताओ और कुछ डाउट है क्या उसमें? वैसे किसी को चाहिए तो I can discuss it now also. हाँ बोलो। सर एक 9th सम में डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें लिखा है कि 1/cot a plus tan a। हाँ, तो फिर सर हम लोग उसको 1/cot a plus 1/tan a में स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं। लाइक 1/2 plus 3 is not 1/2 plus 1/3.
ऐसा नहीं होता। तो 1/tan A प्लस कॉट ए बोला ना तूने? यस वैसे सर। स्प्लिट नहीं कर पाएंगे अभी, वी कैंट राइट इट एज 1/tan A प्लस 1/cot A। फिर अभी लिख नहीं पाएंगे ऐसे, तो ऐसे वाले केसेस में क्या करो, tan और cot को ना sin Sin और and cos में cos. कन्वर्ट कर लो, sin और cos में। सर मैंने फिर कॉट को 1/tan A लिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आई विल टेल यू वन ऑफ द मेथड्स। आई डोंट नो व्हाट वाज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड क्या प्रूव? sin A into cos A। अच्छा हाँ, राइट हैंड साइड देखो साइन और कॉस में है ना, तो 1/tan A लिखोगे तो भी एवेंचुअली tan को sin by cos लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं फर्स्ट स्टेप में ही sin by cos करके लिख दिया। tan A is sin A by cos A and cot A is cos A by sin A। cot A is reciprocal of tan A साध, तो cot A is cos A by sin A। ओके, इसके बाद कैन यू टेल मी क्या करूं नेक्स्ट स्टेप? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा sin A into sin A is sin square A, और cos A into cos A is cos square A, और डिवाइडेड बाय cos A into sin A। ओके, तो क्लियरली sin square A plus cos square A आ गया, तो जो कि अच्छी बात है, विच इज ऑलवेज फिर वो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, तो 1 by cos A sin A। फिर ऐसा कुछ होता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ये भी पता है ना? यस सर। सो दैट इज द राइट हैंड साइड। हो गया? ओके, यस सर। और किसी को कोई डाउट है क्या? एनी अदर डाउट, एनीबॉडी? सर और मुझे 14th सम में भी डाउट है। हाँ बताओ, कैन यू रीड द क्वेश्चन आउट? tan A upon 1 minus cot A हाँ, plus cot A upon 1 minus tan A is equals to sec A into cosec A plus 1। okay, sec A into cosec A plus 1। okay, first, do you know what sec A is? 1 by cos, sir. 1 by cos। And cosec A is 1 by sin। Sin. Arey, I erased it, I'm sorry. The girl who was asking, did you understand this solution? Yes sir। Okay, now this question, can you anybody help me? सर एक्चुअली ये क्वेश्चन में मैंने बहुत सॉल्व किया है, मेरे को लास्ट में समझ नहीं आ रहा था, इसके लिए एक स्टेप। स्टार्ट बता कैसे किया, how did you start? मैंने cot A को 1/tan A में कन्वर्ट किया। Okay, फिर तो tan A upon 1 minus 1/tan A correct, plus 1/tan A upon 1 minus tan A। correct, फिर tan square A upon tan A minus 1 और माइनस साइन में चेंज कर देंगे, और 1/tan A upon 1 माइनस, फिर tan A upon -1 हो जाएगा। एक सेकंड, राइट साइड वाला वापस बता, सेकंड एक्सप्रेशन। 1/tan A हाँ, upon tan A minus 1। tan A minus 1 कैसे हो गया? 1 minus tan A का साइन चेंज किया तो मैंने माइनस किया, साइन, हाँ माइनस भी लिखा ना change- फिर? हाँ किया। ओके ओके, और tan A और नीचे भी 1 minus tan A, मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझा क्या साक्षी? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं किया। ऐसे है 1/2 डिवाइडेड बाय 3 है, 1/2 डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज सेम एज 1/2 into 3। सर 3 ऊपर नहीं चला जाता। नहीं, 1/3 होता तो 3 ऊपर जाएगा। समझा क्या? सिर्फ 3 रहेगा तो 3 2 को मल्टीप्लाई होगा। ओके समझा? ओके, और तूने आई डोंट नो व्हाई यू अच्छा सॉरी, यू हैव चेंज्ड द साइन ना? हाँ, tan A minus 1। ओके, नाउ ये है फर्स्ट तेरा जो है, फिर इसके बाद विल यू गिव इट अ ट्राई और शुड आई टेल? सर एक्चुअली मुझे समझा नहीं आपने ये कैसे किया। कौन सा चीज, इफ यू कैन एलॉबरेट? tan A आपने मल्टीप्लाई कैसे किया वो नहीं समझा। देखो, 1/7 होल डिवाइडेड बाय 8 और 1/7 डिवाइडेड बाय 1/8,
दोनों में डिफरेंस बताना। पहले सेकंड वाला कर लेते हैं। 1/7 डिवाइडेड बाय 1/8 क्या होगा? 1/7 into 8. हाँ 1/7 into 8, ये वाला ऊपर वाला 1/7 अपॉन 8, 8 मतलब 8/1, 8 मतलब 8/1 है, तो ये क्या होगा? 1/8. 1/8 हो जाएगा, हाँ into 1/7 1/8. into 1/8 होगा, ये ठीक है। Yes sir. तो यहाँ पे तूने बोला 1/tan a होल डिवाइडेड बाय tan a माइनस 1 बताया ना तूने। tan a माइनस 1 अपॉन 1 जैसा है ये। हाँ सर. हाँ तो क्या होगा? Sir, but how it came tan a minus 1? It is 1 minus tan a. हाँ but she has changed this minus sign and did this difference. Okay, बता ना साक्षी क्या? I don't know who was asking. हाँ yes sir. Yes sir. इसके बाद बता ना कि ये कैसे चेंज होगा? तो 1/tan a into tan a minus 1. अरे नहीं, ये देख ना, अभी तो क्या 8/1 है, तो क्या हो गया ये 1/2? Sorry. हाँ क्या होगा? हाँ tan a नीचे आ जाएगा, तो 1 हाँ। upon tan a minus 1 into tan a. यस यस ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे भी tan a माइनस 1 है, यहाँ पे भी tan a माइनस 1 है, फिर क्या कर सकते हैं? LCM. एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या आएगा? सर 10 4 ही आएगा ना? tan 4 ये नहीं, सर 10 a into 10 a minus 1 तो 10 square a minus 1 हो जाएगा उधर। हाँ tan a इंटू tan स्क्वायर, tan a इंटू tan स्क्वायर कितना होगा? 10 3 tan cube है. हाँ tan क्यूब a आएगा। तो हाँ ये जो सुन, ऊपर 1 minus cot a था उसको आपने चेंज किया tan a minus 1 में, वो कैसे कर दिया आपने? वो मैंने किया, मतलब she told me so I wrote it. What she has done is she has done tan a divided by cot a को लिखा उसने 1/tan a, फिर उसने इसको एलसीएम लिया तो ऐसे कुछ तो बना tan a डिवाइडेड बाय tan a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a आया, फिर ये tan a जो है वो ऊपर चला गया। ओके सर, गॉट इट. ऐसे करके उसने किया। हाँ तो साक्षी आई गेस tan क्यूब a माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan a इंटू tan a माइनस 1 ये आएगा, Yes sir. ठीक है। फिर अभी न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज कर। tan क्यूब a माइनस 1, 1 मतलब 1 क्यूब ही है, a क्यूब माइनस b क्यूब। विल यू ट्राई और शुड आई टेल? सर अभी आगे मैं सॉल्व कर लूंगी, चलेगा? हाँ ट्राई करो, और किसी को भी थोड़ा सा भी सॉल्व कर रहे हो और आधे में अटक गए ना, तो तुम लोगों के पास मेरा फोन नंबर है क्या? यस सर. मेरा फोन नंबर वैसे व्हाट्सएप पे है, और वही नहीं डिस्कॉर्ड पे भी तुम लोग अपना सॉल्यूशन डाल सकते हो कि सर यहाँ तक किया करके, फिर उसका रिमेनिंग सॉल्यूशन आई कैन राइट इट एंड सेंड इट टू यू। सबका डाउट अलग हो सकता है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सर सा मैंने साइन और होगा तो पूछो। यस बोलो। साइन और कॉस में किया, और सर मैं एक स्टेप में मतलब अभी अटक गया हूँ। अच्छा बताओ साइन कॉस में क्या किया? तो पहले कन्वर्ट किया है सबको। हाँ देखो मैं थोड़ा फास्टली करता हूँ। tan को sin बाय cos, फिलहाल के लिए s बाय c लिख रहा हूँ, जस्ट फीलिंग लेजी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot हो गया cos बाय sin, ठीक है। और दूसरा हो गया cos बाय sin डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin बाय cos। ओके कन्वर्ट किया तो क्या आया, कैन यू टेल मी? सर कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लिया ना डाउन वाले का। करेक्ट, एलसीएम लिया, फिर सर फिर ये सर ऊपर मैंने जाएगा। डिवीजन था ना, हाँ तो सर ऊपर ले गया हूँ। sin स्क्वायर बाय cos इनटू sin माइनस cos प्लस cos स्क्वायर बाय sin इनटू cos माइनस sin, ऐसे आएगा। हाँ सर ऐसा ही है। फिर सर बाद में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया। और नहीं अननेसेसरी कर दिया, अभी लंबा हो गया। यहाँ पे
सही है स्वयं, वी कैन डू दैट. साइन माइनस कॉस है, एक्सक्यूज मी, कॉस माइनस साइन है. सर ब्रैकेट के साथ एलसीएम लिया. हाँ, ब्रैकेट के साथ एलसीएम लो. सबसे पहले साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन में क्या रिलेशन है? साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, व्हाट इज द साइन का डिफरेंस है, क्योंकि माइनस साइन इसमें कॉस Correct. के पास है और Correct, उसमें correct. साइन के पास है. करेक्ट. तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ और कॉस स्क्वायर बाय साइन इंटू साइन माइनस कॉस कर दिया. कॉस माइनस साइन का साइन माइनस कॉस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया. अभी डिनोमिनेटर में देखो कॉमन क्या आएगा? साइन माइनस कॉस. साइन माइनस कॉस. ओके, तो कॉमन निकाल देते हैं. 1 बाई साइन माइनस कॉस कॉमन निकाल देते हैं. 1 बाई साइन मतलब 1 बाई साइन माइनस कॉस कॉमन निकाल दिया. बचा हुआ बचेगा क्या? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन साइन. ठीक है. एलसीएम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई. साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बाई कॉस इंटू साइन, और बाहर भी 1 बाई साइन माइनस कॉस आएगा. ठीक है. हाँ सर. फिर ट्राई कर, क्या करेंगे फिर वैसे इसके आगे? सर a क्यूब माइनस b क्यूब का ए क्यूब माइनस बी फॉर्मूला क्यूब करना पड़ेगा न्यूमरेटर में. जिसको डाउट था, विल यू ट्राई इट अगेन आगे? हाँ सर, 10 से इजी पड़ेगा कि ये साइन और कॉस करे इसमें? साइन और कॉस इजी पड़ेगा. टैन टैन लेंदी है ना बहुत. टैन वाला भी लेंदी ही है, और दीज आर ऑल लेंदी सम्स ओनली. ऐसा 10th जैसा नहीं है कि 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा. और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्या आज ये सम्स, या फिर नया चीज कुछ पढ़ाऊं? यस सर. तो ये करते हैं और थोड़ा या यही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एज फार एज यू आर कॉन्फिडेंट विल कीप डूइंग इट. अच्छा, थोड़े और क्वेश्चंस कराता हूँ. सर हाँ बोलो बोलो. सर ऐसा भी हो रहा है कि हम लोग का जो सिखाया नहीं उसका डाउट लेक्चर पहले हो रहा है और बाद में सिखाया जा रहा है. ओ कौन, आई डोंट नो, डाउट लेक्चर किसके ऊपर हुआ? यस last सर, हम में. लोग ऐसे हाँ. हो रहा है. सर एक्चुअली वो डाउट लेक्चर में लास्ट ईयर वाले भी स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वो ऐसे टाइप के डाउट्स पूछते हैं. ओ हाँ सर, मतलब सर ट्रिग्नोमेट्री सर हम लोग उसमें को ग्रीन सिखाया. हाउस है हम लोग का. अच्छा ग्रीन अच्छा. हाउस के साथ है. ओ दूसरे हाउसेस है ना, ग्रीन हाउस येलो हाउस वाले अगर है तो उनको ना और आगे का पढ़ा दिया ये सब, मतलब उन लोगों ने आगे का भी पढ़ा है. तो तुम लोग उस डाउट लेक्चर में तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए जाना है तो जाओ, नहीं जाओ तो भी चलेगा. बेसिकली तुम लोगों को डाउट होगा तो मेरे क्लास पे पूछ लो ट्रिग्नोमेट्री के. छोटा से छोटा डाउट विल डू इट इन पेशेंटली, विल डू इट. मतलब बट सर बोला कि कंपलसरी अटेंड करना डाउट लेक्चर. ओ, तो सबने अटेंड किया क्या डाउट लेक्चर? हाँ सर, अटेंड नहीं करते सर, हैं, सर ने समझ में खुद नहीं बोला आता. था कि कंपल्शन नहीं है, जिसको डाउट होगा वही है, क्योंकि बाद वही में टाइम कंपलसरी नहीं है. इट्स नॉट कंपलसरी डाउट लेक्चर, बट डाउट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. सर से या मेरे से किसी न किसी से डाउट. सर हम लोग को कि सिखाया नहीं है तो उसका डाउट कैसे होगा? ट्रिगो सिखाया है सर, अभी हम लोग का ट्रिगो नहीं हुआ था, हाँ चालू ही नहीं हुआ था. हम लोग तो जस्ट स्टार्ट ही किया ट्रिग्नोमेट्री. तो मतलब ठीक है, उसको दिल पे मत लो. इट्स ओके नॉट टू अटेंड इट. मतलब वो सब एंगल्स डिग्रीज के बारे में वो सब डिस्कस हो रहा होगा, आई गेस सो. साइन 180 डिग्री. क्या पता कहाँ से समझा रहे थे. सर बेसिक सम्स ही थे ट्रिगो के, इतने ज्यादा टफ वाले नहीं थे सर. ओके ओके, आई डोंट नो डाउट लेक्चर में क्या हुआ. सर वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे कि वो लोग साइन कॉस के जगह टैन कॉट में ही पूरा सम खत्म करने का ट्राई कर रहे थे. अच्छा 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 अच्छा. तो वो बार बार एक ही आइडेंटिटी रिपीट करते जा रहे थे साइमल्टेनियसली 2-3 स्टेप्स में. ओ ठीक है. वैसे थोड़े दिन लाइक 2 सर हफ्ते के बहुत बाद फास्ट समझाते हैं, समझ. क्या क्या फास्ट समय. ओके ओके ठीक है ना, इट्स ओके. तुम लोग अपना डाउट्स क्लियर कर लो, यहाँ पे पूछ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम लोगों को भी 2 हफ्ते के बाद तुम लोग भी यू विल आल्सो बिकम फास्ट इनफ. और तुम्हारे बाद भी और भी हाउस है, इंडिगो हाउस एंड ऑल, तो यू गाइस आर फास्टर देन देम.
इधर है, मतलब जस्ट तुम लोग अपने हिसाब से कर लो, तुम लोगों को डाउट्स रहेंगे तो आई कैन कम ऑनलाइन फॉर यू गाइस टू डिस्कस द डाउट्स, यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट मी और टेल मी। ओके, ये वाला क्वेश्चन एरेज कर रहा हूँ, जिसको डाउट था थोड़े और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ठीक है? कर दूं ना एरेज ये? हाँ सर। Okay. How many of you are from IG board in your class? ठीक है, अच्छा नाउ एसएलओनी के होमवर्क में और कोई डाउट है क्या? एनीबॉडी? एसएलओनी वाले से एक मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे, cos पावर 4 प्लस sin पावर 4, याद है क्या? cos पावर 4 प्लस sin क्या था? Correct. क्या बताओ? 1 -2 sin square x into cos square x. correct. And there was another similar formula, cos power 6x plus sin power 6x. 1 minus 3 sin square x into cos 1 square minus x. 3 sin square x cos square x. पक्का याद है ना everybody else? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. for example, ऐसा question है, I don't know have we done this in the last class or not. Find the value of सर ये वाला आपने दिया था। दिया था क्या? Sir, done. Okay, okay. एक सेकंड, थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, थोड़ा सा I'll make it look complicated. If fk theta okay, this is the question. First question लिख लो, बाद में we'll understand how. I'm just making it look very very tough. First write down the question. If f suffix k, f k theta equals to sin power k theta plus cos power k theta divided by k, find f6 theta minus f4 theta plus f2 theta. वो बाकी हाउस वाले ग्रीन हाउस वगैरह ना एक महीने से पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो आई एम ओनली टीचिंग देम ट्रिग्नोमेट्री. उनको भी ये जो स्टार्टिंग का था, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बट आफ्टर 1 मंथ नाउ दे आर बेटर. सर बस थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि लाइक कब क्या पढ़ना है, ऐसा लाइक एक कोई सेट रूटीन नहीं है ना, मतलब just it's confusing sometimes. Confusing of what? Which one? लाइक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिन फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही, तो सर कुछ अलग पढ़ा देते हैं, फिर लाइक हम लोग को बुक्स में देखना पड़ता है वो चीज क्या है. हाँ, फिजिक्स में तो वो सब 120 डिग्री वगैरह कुछ हाँ पढ़ सर रहे वो तो होंगे. आगे आएगा ना. हाँ, वो एक्चुअली हम लोग ना इस क्लास एंड में पढ़ेंगे या तो अगले क्लास में पढ़ेंगे वो चीज, तो अगले क्लास के बाद वो चीज क्लियर हो जाएगा. जस्ट वन वीक तक वेट करना, फिजिक्स का समझ में आ जाएगा. सर उन लोगों को ऐसा प्लानर मिलेगा क्या कि लाइक इस महीने तक ये चैप्टर्स खत्म करने हैं, या ऐसा कोई प्लानर होगा क्या एग्जाम्स का? सी वैसे प्लानर मतलब जैसे वो जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का है ना, तो फर्स्ट प्लानर मतलब वही मॉड्यूल 1 ही खत्म करना है और कुछ नहीं है. पर कब तक, लाइक कुछ एंड टाइम है क्या उसका? ट्रिग्नोमेट्री जो है 2 मंथ्स में खत्म करेंगे. लाइक ट्रिग्नोमेट्री विल टेक 8 वीक्स. हाँ दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि लाइक जिस चैप्टर में जितना वीक्स लगेगा या उसके हाँ. कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, वैसे कोई लिस्ट मिलेगा क्या हमें कि हम अपने मन से करें? नहीं मतलब एक्चुअली आइडिया ये है कि एज सुन एज पॉसिबल करेंगे. एज सुन एज पॉसिबल मतलब अभी स्टार्टिंग के लेक्चर, स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री 8 हफ्ते लगेगा. मैथ्स का मैं बता सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री 8 वीक्स लगेगा. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वो भी 8 वीक्स लगेगा. उसके बाद शॉर्ट होते जाएंगे. नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज करके आएगा, जो जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह स्कूल में पढ़ा होगा शायद. APGP ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? हाँ हाँ सर, सर. Arithmetic and geometric. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हाँ, मतलब I can give you a rough idea regarding maths actually. Should I give you after solving this question? यस सर, कंप्लीटली. बोर्ड पे जगह, I'll write it on the board.
I'll tell you what the portion is all about. Okay, पहले question लिख लो everybody. If लिख लिया f सर। if f k theta equal to sin power k theta plus cos power k theta by k, find the value of f6 theta minus f4 theta plus f2 theta. Abhi this question, the symbols and all might be first time for you. बेसिकली आगे जाके 12th में हम लोग पढ़ेंगे f मतलब फंक्शन होता है. आई डोंट नो इफ यू हैव एनकाउंटर्ड बिफोर और नॉट. ओ सानवी 1 minute, लेट मी चेक द आंसर वेरी फास्ट. यू आर नो सानवी, थोड़ा मिस्टेक हो गया. Sir, बोलो. it is f6 theta minus f4 theta plus f2 theta is equal to. f6 theta minus f4 theta plus f2 theta. हाँ. Okay, okay. But Sanvi, I think you're on the right lines, but थोड़ा सा. Akshat Gaur correct, Siddhant also correct. Very nice. Two of you got the answer. Okay, I'll start solving the question now. सबसे पहले देखो, क्वेश्चन देख के डरो मत. अभी एफ के थीटा का कुछ तो दे रखा है. एफ के थीटा जो है ये चीज होता है साइन पावर के कॉस पावर के अपॉन के. तो f6 मतलब k की जगह आपने को 6 डालने का है. दैट्स ऑल. k की जगह 6 डालना है. तो f6 थीटा क्या होगा? कैन यू टेल मी? sin 6 theta plus cos 6 theta upon 6. Sin power 6 theta plus cos power 6 theta divided by 6. 6. That's all. Okay. This cheese minus f4 theta. f4 theta is basically sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta divided by 4. That is our f4 theta. Plus, what will be f2 theta? Ayush, you are right. What will be f2 theta? Sin square theta plus cos square theta upon 2. Okay. Anybody who has doubt in the first step? Okay. अच्छा, now we have to use the formula. अभी sin power 6 plus cos power 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 minus 3 1 minus 3 sin square theta cos square theta. Yes, that is the formula which I just erased. Okay. So this is basically 1 minus 3 sin square theta into cos square theta whole divided by 6. Okay. फिर minus आएगा. Sin power 4 plus cos power 4 will become 1 minus 2 sin square theta cos square theta divided by 4. Correct. Last one क्या होगा? 1 upon 2. 1 upon 2. इसके बाद LCM क्या आएगा? 1 plus 2 को like प्लस में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ प्लस था. ओके ओके. मतलब यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, अकॉर्डिंगली लिखा. ओके. LCM क्या आएगा? 24. 24. Okay, 24 is not the LCM, but 12. 12 is the LCM. 12. 6 4 का LCM 12 होता है. Can you guys try आगे? भौमिक correct? Can you guys do further next step क्या होगा? Try कर सकते हो क्या जरा? सानवी, you are right now. क्या मिस्टेक हुआ था पहली बार? तो मैंने -1/2 कर दिया था. अच्छा, ओके ओके. जल्दी करो अदर्स. क्रॉस में एलसीएम लो. ये 6 से यहाँ 12 आया तो ये आता होगा शायद सबको. 2 मल्टीप्लाई करेंगे.
जल्दी करो. I'll solve it in 1 minute. After 1 minute, I'll just solve it. That's right, Nihar. सर 7/12 आ रहा है. Oh, नहीं यार स्वयं. Can you tell me स्वयं next step क्या होगा? सर मैंने वो 1 - 3 साइन स्क्वायर करना हा होल डिवाइड बाय होल से ना हा 2 और 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है. करेक्ट. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? फिर उस न्यूमरेटर आएगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा. करेक्ट. -3 -3 plus 6 sin square theta into cos square theta. Very nice. I hope others also have realized minus minus plus 6 हो जाएगा. And plus 6/12. Plus 6/12 ये करेक्ट है. क्या ध्यान से कर, क्या क्या कैंसिल होगा फिर? सर 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा. 6 sin square theta और sin square, हाँ ये वाला. -6 sin square theta plus 6 sin square theta कैंसिल हुआ. फिर बचेगा क्या? ध्यान से कर. सर +2 - 3 तो -1 होएगा. 2 - 3 -1 होएगा. -1 plus 6 कितना होएगा? अरे यहाँ पर ही करती है. अरे क्या गलती करेगा क्या लास्ट में जाके? That's right. एक्सप्लेन कर सकता है ये 2 - 6 sin square थीटा वो कैसा आया? हाँ, क्योंकि यहाँ नीचे 6 है ना, यहाँ पे क्या है 12 है, तो 6 को 12 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके सर, मतलब पूरा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. यस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ठीक है. और यहाँ नेक्स्ट वाले में 4 था. यू मस्ट हैव गॉटन साथ. फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. या ओके. ओके. और किसी को डाउट है क्या इस समय? सर 6 कैसे आया? 6 तो क्वेश्चन में ही था. नहीं सर, न्यूमरेटर में. अच्छा, लास्ट वाले में 2 है ना. 2 को 12 कैसे करेंगे? 2 × 6. हाँ, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. नहीं सर, 6 sin square थीटा. हाँ, फर्स्ट वाला 6 sin square थीटा की बात कर रहे हैं कि सेकंड वाला 6 sin square थीटा? दोनों. तो किस, ये कुछ ने पूछा? मैंने साक्षी. हाँ देखो, ये 6 था, ये एलसीएम 12 आया. एलसीएम 12 है ना, तो 6 को 12 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 × 2. हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना. हाँ सर. हाँ, तो 2 ब्रैकेट्स ओपन करो ना. 2 × 1 2. हाँ सर. 2 × 3 6. सर एक्चुअली ऐसे नहीं कर सकते कि sin square थीटा. अच्छा नहीं. ठीक है. नहीं सिद्धांत, we can't do that. A plus b the whole cube is not a power 6 plus b power 6. मतलब we can't write something like this. 2 power 6 plus 3 power 6 is not a 2 square plus 3 square whole cube. ऐसा नहीं कर सकते. क्लियर है क्या सिद्धांत? ओके. और किसी को डाउट है क्या? साक्षी, साध और एनीवन एल्स? नो सर. ओके, चलेगा. एक और सम करते. राइट डाउन. ऑल्सो स्कूल में जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही प्रूव वाले क्वेश्चंस थे. बट तुम लोग ये जो अपना एसएलओनी के जो प्रूव दैट वाले सम्स है, उसमें यू कैन डू इट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही करना है. यू कैन डू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो. वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू. थोड़े क्वेश्चंस करते हैं.
ओके, एसएलओनी से नहीं तो फर्स्ट 17 सम से तो नहीं करवा रहा हूँ, वो तुम लोगों का हो गया। जैसे कि रीअरेंज करने वाला एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। टर्न प्रूव दैट cot A into cos A divided by cot A plus cos A equals to cot A minus cos A divided by cot A into cos A। अरे हाँ, ये प्रूव करना है। इन द मीन टाइम सानवी और सम गर्ल वाज आस्किंग शेड्यूल, किसने पूछा मुझे? सर इशिता। हाँ इशिता, हाँ सॉरी। अरे वो एक्चुअली आई स्टिल डोंट नो योर नेम्स विद जस्ट द वॉइस, आई एम अनएबल टू रिकॉग्नाइज इट। फेसेस होते तो अच्छा रहता। तुम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कभी किया है क्या आपस में? नहीं सर। You guys mind switching on your videos like from next time और उसके next time? No, sir. No? It's okay. हाँ मतलब I can ask at least 5 students to 10 students every class to switch on the videos, so maybe it will be a little more fun for me. इधर है as far as maths of 11th standard, 12th standard and JEE, CET, IIT JEE or whatever all this level, इस maths को ना it has been broadly classified into 4 categories. The categories are, first one is trigonometry, which we are studying right now. So trigonometry में of course the first chapter of trigonometry is basically discussing about sin theta, cos theta and all those manipulations which we are doing right now. इसके अलावा trigonometry में we will be studying about radians, degrees, which also we have somehow did it. Radians तो हमने कर लिया। इसके अलावा स्कूल के लेवल ट्रिग्नोमेट्री में sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री डिस्कस किया था। अभी लेकिन दुनिया में 30 डिग्री से आगे की वैल्यूज भी होती है, 120 डिग्री, 300 डिग्री एंड ऑल। तो उसका sin 300 डिग्री, ये सारे वैल्यूज कैसे ढूंढना है, लाइक अननोन एंगल्स जो तुम लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा, वो सारे वैल्यूज लाइक 15 डिग्रीज नहीं पढ़ा था, और छोटे छोटे इवन वियर्ड एंगल्स लाइक 22.5 डिग्रीज, ऐसे वैल्यूज को कैसे ढूंढना है ये भी हम लोग सीखेंगे इस वाले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द एप्लीकेशन जो स्कूल के लेवल में किया था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है, दैट इज द मोस्ट बेसिक एप्लीकेशन। पर ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही हाई लेवल चीजों में यूज होता है, इवन क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, दैट विल सून अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री के दो चैप्टर से 11th में और 2 चैप्टर से 12th में, 2 चैप्टर से 11th स्टैंडर्ड में, 2 चैप्टर से 12th स्टैंडर्ड में। दिस इज द टोटल ट्रिग्नोमेट्री विच वी आर गोइंग टू स्टडी। 2 चैप्टर्स फर्स्ट हम लोग इस ऑर्डर में करेंगे, 11th में 2 चैप्टर्स करके फिर अगेन ब्रेक लेके अगेन 12th स्टैंडर्ड में 1 साल के बाद हम लोग 12th का करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा देयर इज अनदर सेट ऑफ चैप्टर्स कॉल्ड एज अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब जानते हो क्या? Yes, quadratic equations. Yes, very good. Quadratic equations, solving quadratic equation, ax square plus bx plus c को सॉल्व करना। उसके अलावा AP, GP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह भी हम लोग करेंगे। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा भी दुनिया में और भी अलग अलग टाइप के सीरीज है, वो सारे भी हम लोग अलजेब्रा में करेंगे। और थोड़े परम्यूटेशंस का भी सुना है क्या वर्ड? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन? यस सर। अच्छा, मतलब थोड़ा सा पजल टाइप के क्वेश्चंस है, पजल टाइप के क्वेश्चंस वाले वो सब हम लोग अलजेब्रा में करेंगे। और उसके अलावा बायनोमियल थ्योरम, ऐसे करके चैप्टर्स के नाम बता के कुछ फायदा नहीं है, बट देयर आर मेनी चैप्टर्स हियर। इवन प्रोबेबिलिटी किया होगा शायद तुम लोगों ने स्कूल में। प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट सर, बट वो अलग रहेगा ना प्रोबेबिलिटी 10th लेवल का? स्कूल का तो बिल्कुल नहीं रहेगा, स्कूल से तो बहुत ही हाई लेवल रहेगा, बट वो 12th में जाते जाते बहुत ही इजी लग जाएगा। अभी जैसे कि और बायनोमियल थ्योरम करके एक है, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा है, a प्लस बी होल क्यूब भी पढ़ा है, अभी a प्लस बी होल पावर 7 नहीं पढ़ा है क्लियरली।
तो हम लोग ना ऐसा एक चैप्टर करेंगे जिसमें a प्लस बी पावर 7 ही नहीं, a प्लस बी पावर 70 भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे करके वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली जो स्कूल में किया था उसको सुपर एम्पलीफाई करेंगे हम लोग, बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की चीजें, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रेच करके हायर लेवल क्वेश्चंस करेंगे। तो दैट इज ऑल इज गोइंग टू हैपन इन ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल थ्योरम, ये सब कुछ हम लोग, इवन मैट्रिसेस पढ़ा है क्या? Did you study? हाँ सर, मैट्रिसेस भी हाँ, पढ़ा। मैट्रिसेस वगैरह भी हम लोग, ये सब हम लोग करेंगे अलजेब्रा में। तो इसमें से थोड़े चैप्टर्स 11th में करेंगे, क्वाड्रेटिक सीरीज वगैरह, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी वगैरह हम लोग 12th में करेंगे। थोड़े 11th में है, थोड़े 12th में है। मानस, आई डोंट माइंड इफ यू स्विच इट ऑन। ओके, अदर देन दिस और एक सेट ऑफ चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा, स्ट्रेट लाइंस। यस सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हम लोग इसके ऊपर करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। स्ट्रेट लाइंस किया है ना स्कूल में? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब वो जो ट्रायंगल फॉर्मूला लगता था वो वाला? डिस्टेंस फार्मूला जो रखता हाँ, है, डिस्टेंस फार्मूला, ट्रायंगल डिस्टेंस फार्मूला, हाँ हाँ, वो एक फार्मूला है। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी पता है क्या? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c करके होता है। हाँ, वाई होता है। नहीं सर। हाँ, पढ़ा है। हाँ सर, ये पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। हाँ सर, पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर वापस से हम लोग करेंगे, स्ट्रेट लाइंस करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन थोड़े स्कूल्स में पढ़ा देते हैं, आई डोंट नो कौन से बोर्ड में, बट स्ट्रेट लाइंस के अलावा और भी कर्व्स है दुनिया में। एनी अदर शेप्स दैट यू नो, मैथमेटिकल शेप? Mathematical shape. डेकागन तक। Circle is also mathematical shape. Any other shape? पेंटागन। Pentagon. Okay. Circle, decagon, all. क्या? Could you repeat? Sir, till decagon, all shapes. हाँ, डेकागन और थोड़े पॉलीगन्स नहीं चाहिए, पॉलीगन के अलावा। पैरेललोग्राम। एलिप्स सुना है क्या? एलिप्स, अरे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। यस सर। यस सर। ऐसे करके और भी अलग अलग शेप्स करेंगे, मतलब अगर एक बॉल को फेंका हमने, लाइक एक इस बॉल को फेंका तो ये इस एक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल सुना है क्या? प्रोजेक्टाइल? यस सर। हाँ, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। स्कूल के लेवल में सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में करेंगे, स्ट्रेट रहेगा। इसमें थोड़े टेढ़े मेढ़े कर्व्स वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली दुनिया में हेल्प होगा। जैसे कि वेरी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जांपल इज, जो क्रिकेट अगर देखते हो, LBW हुआ कि नहीं अगर चेक करना है तो यू मस्ट हैव सीन की बॉल आके बाउंस करके वापस विकेट्स को हिट कर रहा है कि नहीं हिट कर रहा है। मतलब ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोशन ऑफ दिस बॉल एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रहे हैं। तो डरो मत, जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग ना मैथ्स को जो है, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। और और कैलकुलस में ये सब भी है। कैलकुलस जो फिजिक्स में चल रहा है कैलकुलस, वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जस्ट कीप एन ओपन माइंड, कैलकुलस जो है आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अभी कैलकुलस जो है हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं चीजों को। ऑप्टिमाइज करते हैं मतलब बेस्ट सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक मेटल शीट है, मान लो देयर इज अ मेटल शीट, ओके, इट इज अ मेटालिक शीट। अभी इस मेटालिक शीट से मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे पानी लेके जाना है। इट इज ए मेटल का शीट है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके जाना है। तो डू यू थिंक इसमें पानी डालूंगा तो इट विल स्टे? ऑब्वियसली नो। अच्छा, अभी काम क्या है, अभी तुम लोगों के पास एक ऑप्शन दिया है कैसे लेके जाने के लिए। ये मेटल शीट के चारों कॉर्नर्स में ना एक स्क्वायर कट कर दो। चारों कॉर्नर्स में ना एक स्क्वायर कट कर देते। चारों कॉर्नर्स में से ना एक स्क्वायर कट करने के बाद ऐसे फोल्ड करेंगे तो एक बॉक्स बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजिंग? चारों कॉर्नर्स में से एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ही नथिंग स्पेशल माइनस, यू कैन जस्ट बहुत ही छोटा सा स्क्वायर कट करूं और ऐसे फोल्ड करूं, तो वो जो बॉक्स जैसा बनेगा शेप, उसमें फिर पानी डाल के आई विल कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अच्छा, तो बहुत ही कम स्क्वायर कट करूंगा तो हाइट कम रहेगा, तो पानी थोड़ा कम लेके जा पाऊंगा।
थोड़ा ज्यादा करूंगा तो विल आई बी एबल टू कैरी मोर वाटर? यस सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं sir. कि मैं पूरा ही Sir? कट कर दूं। हाँ बोलो। उधर सरफेस एरिया घट जाएगा ना, दो हाइट हाँ, इंक्रीज हो अगर जाता है। अगर साइड में से स्क्वायर बहुत ज्यादा कट कर देंगे तो भी ज्यादा पानी लेके जाएंगे क्या? नहीं सर, फिर मतलब नहीं, तो बीच Width का कम हो जाएगा। हाँ बीच, हाँ तो कितना कट करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा पानी लेके जा सकते हैं। अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द आंसर नाउ, इट इज जस्ट दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स, कि कितना कट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि अभी मुझे टिफिन बॉक्स बनाना है, ज्यादा से ज्यादा अंदर सब्जी फिट होनी चाहिए, इस तरीके का बॉक्स, तो हाइट कितना होना चाहिए, बेस कितना होना चाहिए, मटेरियल उतना ही यूज करना है। तो ये सब कुछ जो है आगे जाके इंजीनियरिंग यही होता है कि कितना इनपुट करेंगे ताकि मैक्सिमम आउटपुट आ जाए, मतलब मतलब एफिशिएंसी, अंडरस्टैंड द वर्ड एफिशिएंसी? यस सर। एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो कैलकुलस से ना एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें कैलकुलस से कैसे सर एफिशिएंसी कैलकुलस बढ़ाएंगे? मतलब वो जो फिजिक्स में सिखा रहे हो सेम टू सेम होगा हाँ कि अलग होगा? हाँ, फिजिक्स में तो जो है फिलहाल के लिए तुम लोगों को बस नंबर्स की तरह कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऐसे करके तुम लोग नंबर्स के हिसाब से करेंगे। जब मैथ्स में करेंगे तो ये सब विजुअलाइजेशन वाली चीजें करेंगे, तो हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ जो है हम लोग 11th और 12th में पढ़ेंगे। इन सारी चीजें पढ़ने के बाद यू आर गोइंग टू लाइक समथिंग आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यू आर गोइंग टू लाइक समथिंग आफ्टर 2 years। जो भी चीज पसंद आएगी, जैसे प्रोबेबिलिटी पसंद आ सकता है, कैलकुलस पसंद आ सकता है और ट्रिग्नोमेट्री, जो चीज पसंद आएगी उसके रिगार्डिंग तुम लोग आगे इंजीनियरिंग में करोगे, वो मतलब वैसा वाला ब्रांच लोगे। तो कौन सा करोगे तो कौन सा ब्रांच यूज होगा, दैट यू विल अंडरस्टैंड सून। तो ये सब फ्यूचर है तुम लोगों का। सो अप्रोक्सीमेटली ये सब हम करेंगे। अभी मैथ्स का फ्लो जिसने पूछा था, इशिता आई गेस, तो फ्लो जो है सॉर्ट ऑफ ऐसे है, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर करेंगे, अलजेब्रा का एक चैप्टर करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर करेंगे, फिर से सेकंड, फिर से ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके विल कीप ऑन डूइंग इट। सर, हाँ बोलो। 11th का मैथ पोर्शन लाइक कब तक खत्म होने के चांसेस रहते हैं? 11th का क्यों, 11th और 12th दोनों का क्यों नहीं बात कर रही हो? तो ये चैप्टर्स में भी वेटेज का जैसा कुछ होता है, जैसे इसमें किसी एक में ज्यादा वेटेज होगा, किसी में कम होगा? हाँ होगा, हर एग्जाम के लिए अलग वेटेज होता है। सीईटी में कोई चीज ज्यादा पूछते हैं, जेई आईआईटी में कोई और चीज ज्यादा पूछते हैं, तो हर, हाँ बोलो। और सर कौन से चैप्टर्स है जो 12th में भी पढ़ने पड़ेंगे एज फॉर द जेईस एंड मतलब सारे चैप्टर्स यार तुम लोगों को, मतलब 11th का पूछ रहा हूँ, 11th का 12th का। हाँ 11th में कैलकुलस नहीं है, 11th में सिर्फ इतना है, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी हम कर रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज, स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है, स्ट्रेट लाइंस करके एक चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन और सर्किल करके एक चैप्टर है, और सर मतलब बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इक्वली डिवाइडेड है कि मतलब बेसिक का थोड़ा ज्यादा? बेसिक मैथमेटिक्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। बेसिक मैथमेटिक्स में सिर्फ जो भी चीजें हो रही है ना वो इस चैप्टर के बीच बीच में यूज होंगी, मतलब सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स पे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए लाइक सबको। लाइक समबडी हैज आस्क्ड 1/2 + 3 को 1/2 + 1/3 स्प्लिट नहीं कर सकते, लाइक दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, that is something that is going to be parallelly going on। और बेसिक मैथमेटिक्स थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स कौन से सर पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को? सौरभ सर। हाँ सौरभ सर। तो आफ्टर बेसिक मैथमेटिक्स इज कंप्लीटेड, सौरभ सर will pick up some other chapter out of these and he is going to continue with that chapter। तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स एग्जाम में नहीं पूछते ना ऐसे? सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पूछते, लाइक बेसिक मैथमेटिक्स हर क्वेश्चन के बीच में आता है। लाइक बेसिक मैथमेटिक्स इज लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन ओनली, बट थोड़ा सा हायर लेवल। बेसिक नाम में बेसिक है बट बेसिक कुछ नहीं है उसमें, बेसिक से हाई लेवल ही। आई डोंट नो तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा? ठीक है सर, उन्होंने वो जो बेसिक मैथ्स का पीडीएफ भेजा था, लाइक स्टार्टिंग में तो इजी है पर आगे जाके वो हार्ड होते होते जा रहा हाँ है। हाँ, आगे जो कि हार्ड ही होता है, वो नाम पे मत जाओ, बेसिक तो बिल्कुल नहीं है, वो बेसिक नहीं है। वो जो 10th में नहीं पता, जो चीजें 10th में नहीं पढ़ाते हैं वो सब कुछ पढ़ा के उसका नाम बेसिक करके बोल दिया। वो एक्चुअली वो टीचर्स के लिए बेसिक है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। वो बेसिक मैथमेटिक्स ना कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड पोर्शन दैट इज कंसिडर्ड एज बेसिक, दैट इज ऑल।
It is not basic for you. Just treat it like mathematics, general calculation in mathematics करके नाम assume कर लो उसका. Okay निहार, nice. I'll give Wow, sir. okay. और भी कुछ पूछना है क्या? और हम लोग और भी चीजें करेंगे यार. We'll study 3D geometry also. 3-dimensional geometry कैसे रहेगा ये सब कुछ. तो एक्चुअली तुम्हारे थिंकिंग और रियल लाइफ में एप्लीकेशंस बढ़ी आएंगी. मतलब तुम लोग एक्चुअली जेन्युइनली इंजीनियर के डायरेक्शन में जाओगे. अभी तुम लोग बस स्कूल में कैसे होता है कि पढ़ा रटा फिर एग्जाम लिखा मार्क्स आए ऐसे करके. अभी हम लोग 11th 12th में कैसे है कि ऐसे करो तो क्या होगा, वैसे करो तो क्या होगा करके विल कीप डिस्कसिंग. यू हैव टू कीप आस्किंग डाउट्स. तुम लोग को डाउट पूछेंगे तभी क्लियर होंगे चीजें. like I don't know, I must have asked in the last class, I don't remember. Do you know the value of what is the value of 5 raised to 0? 1. 1. 5 raised to 0 is 1. Can anybody tell me why? It is the rule that ये कैसे रूल है? एनीथिंग रेज टू 0 1 क्यों रूल है? फिर किसी ने बोला और तुम लोगों ने मान लिया. एनीथिंग रेज टू 0 0 क्यों नहीं है? सर क्योंकि इससे एक वैल्यू है ना. 5 कितनी बार है? तो 5 0 बार है. 5 0 बार है तो 0 क्यों नहीं है? तो 1 है ना. कोई भी चीज अगर बिल्कुल नहीं रहती है तो अरे दैट वी जस्ट नो द फॉर्मूला, नथिंग एल्स. वो 1 हो जाता है. सर वो नहीं आता. हमने थोड़ी ना बनाया. जिसने बनाया आपको उससे पूछना अरे चाहिए. जिसने बनाया तो जब तुम लोगों को बोला तो तुम लोगों को पूछना है ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों. तो अभी जैसे कि a रेज टू m माइनस n पता है क्या? लॉस ऑफ इंडाइसेस. yes, क्या होता है? a raised to m upon a raised to n. m upon a raised to n. अच्छा, तो अभी 5 रेज टू 0 को लिख लूंगा 1 माइनस 1. अभी लॉस ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे तो क्या होगा? ये 5 raised to 1 upon बस 5 और 5 कैंसिल और इसीलिए 1 है. तो ये इतनी छोटी सी चीज है कि एक बार समझ जाओ तो फॉरएवर ही याद रह जाता है. कोई खास बात नहीं है. इट इज जस्ट दैट तुम लोग स्कूल में इतना ओपनली पूछ नहीं रहे हो. अब से तुम लोग पूछा करो. 11th और 12th में बहुत सारी नई चीजें हम लोग एनकाउंटर करेंगे. तुम लोगों को नहीं पता है तो सर लोगों को लगता है कि तुम लोगों को पता है करके आगे बढ़ जाते हैं. तुम लोगों को नहीं पता है तो जरूर तुम लोग स्टॉप करो मुझे और पूछो. मुझे नहीं, कोई भी सर को. ठीक है, यू मस्ट आस्क. ओके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं विच विल स्लोली अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसे होता है. तो मतलब ये तो स्मॉल एग्जांपल है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज बी मोर आर्टिकुलेट. ओके, डू यू अंडरस्टैंड एक्सट्रापोलेट? सर ये नाम नहीं सुना कभी. नाम नहीं सुना? पहली बार सुना सर. अच्छा, किसी को नहीं पता कि एक्सट्रापोलेट इंग्लिश वर्ड है? नहीं सर, एक ओके, इंग्लिश वर्ड मोर मैथमेटिकली ज्यादा यूज करते हैं. तो एक्चुअली तो यू गाइस एज मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो भी बनना चाहते हो साइंस रिलेटेड, एक्सट्रापोलेशन रखना है. एक्सट्रापोलेशन मतलब तुम लोगों को ट्रेंड ऑब्जर्व करके आगे की चीजें प्रेडिक्ट करना. ट्रेंड ऑब्जर्व करना है. लाइक ट्रेंड ऑब्जर्व करके सर डेटा एनालिस्ट वाला ना. हाँ, सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा ट्रेंड ऑब्जर्व करके आगे का प्रेडिक्ट करना. लाइक बहुत इजी है ये, बस अच्छा फैंसी वर्ड है. जैसे कि अभी देखो 1 2 3 4 नेक्स्ट क्या होगा? 5 6 7 8. 5 6 7 सर आई थिंक ये फोबिक तो या अभी वैसा कुछ बेसिकली यू गाइस रिप्रेजेंटेशन हैव ऑब्जर्व द ट्रेंड. अभी फॉर एग्जांपल 1 4 9 16 है. व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? 25 36. हाँ, बेसिकली यू गाइस हैव ऑब्जर्व समथिंग कि हाँ सारे स्क्वायर से. तो तुम लोगों ने आगे दिमाग लगा के आगे का एक्सट्रापोलेट कर दिया. अभी ऐसे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं दूं 2 6. कैन यू गेस द नेक्स्ट? 2 6 12 20 फिर आगे क्या होगा? 30 42 56. ओके, 30 इज करेक्ट. कैन यू टेल मी कैसे किया? सर यहाँ पे सबसे पहले 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, तो वैसे ही 2 2 2 2 प्लस 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, यहाँ पे 10 ऐड होगा. 10 ऐड होगा. ऐसे करके उसने ट्रेंड ऑब्जर्व किया. डिड एनीबॉडी ऑब्जर्व एनी अदर ट्रेंड? किसी ने कुछ और ट्रेंड ऑब्जर्व किया क्या? अच्छा, बस बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रेंड ऑब्जर्व करना है. यू हैव
इन मैथ्स ट्रेंड ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अभी ग्राफ्स बना रहे हैं तो 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, फिर आगे 4 पे वैल्यू क्या होगा? 4 मतलब आगे अभी 5.5 पे वैल्यू क्या होगा कोई पूछे, मतलब इस ग्राफ को ना हम लोग स्ट्रेच करके एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि बिहेवियर देखो ऐसे करके ऐसा लग रहा है कि ग्राफ है. सो दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ. आई डोंट नो स्कूल में ग्राफिंग पेपर से ऐसे करवाया है कि नहीं, बट अभी ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही किया होगा तुम लोगों ने, बट मोस्ट प्रोबब्ली नहीं किया. बट स्टिल दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेशन. जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो आजकल ऑब्जर्व मतलब ऐसे वो जो भी वेव्स ग्राफ्स है तो दे आर ऑब्जर्विंग कि हाँ इतना 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 होने रहा है, तो दे आर प्रेडिक्टिंग कि अच्छा नेक्स्ट डे कितने केसेस हो सकते हैं. लाइक मुंबई में डेली 100 केसेस कम हो रहे हैं, तो आज अगर 800 केसेस आए तो कल कितने केसेस आएंगे, मतलब दे आर प्रेडिक्टिंग कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली 700 केसेस आएंगे. उसके अकॉर्डिंगली so all these are like scientists, वो तो बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ. there are more things that one is going to understand. like are you understanding word extrapolate? like कम इंफॉर्मेशन से आगे का चीज प्रेडिक्ट करना. चमका क्या? यस सर. हाँ बोलो. सी एक्स्ट्रापोलेट के ऊपर ना एक जोक है, मैं जोक बताता हूँ. डोंट आस्क मी टू एक्सप्लेन द जोक. किसी को समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो इट्स टेक इट इजी. ओके, नाउ there are two kinds of people. There are two kinds of people in the world. One, those who can extrapolate from given information. And the joke is over. किसी को जोक समझा क्या? Yes, sir. थैंक यू. नहीं सर, क्या था ये? और किसी को समझा क्या जोक? सर डैड जोक्स यार. मतलब there are two kinds of people in the world. One who can extrapolate from other information. मतलब what might be the two नहीं लिखा मैंने. क्यों नहीं लिखा? मतलब क्या समझा क्या? ठीक है छोड़ो, ठीक, लीव इट. जो इंफॉर्मेशन दिए है ऊपर उसका एक्स्ट्रापोलेट कर. हाँ एक्चुअली जिसको एक्स्ट्रापोलेट समझा उसको ग्रुप जिसको समझेगा एग्जाम समझ गया वो. हाँ मतलब जिसको समझा ठीक है, वरना जब वो एक्स्ट्रापोलेट कर सकता है, जो नहीं समझा वो नहीं कर सकता. हाँ एग्जैक्टली. द जोक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्चुअली. समझा तो ठीक है, else it is fine. In fact it is a dad joke only. Okay, leave it. Other than this we'll continue with the lecture. और कुछ पूछना है क्या? आगे क्या होने वाला है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सर आप बोले कैमरा ऑन करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास से. नहीं. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ेगा. लाइक आई फेल्ट कि यू गाइस आर द लीस्ट इंटरेक्टिव. मतलब now you guys have started interacting in the last 10 minutes, but in other houses and all people ask doubts without afraid. मतलब are you guys afraid of me or anything? No, sir. Not you, sir. ठीक है. हाँ Rishank, you can collect the hard copies indeed. Hard copies के लिए you have to call the center. Wherever you stay, you call the local मतलब closest center and then you can coordinate with them. So खुल गया क्या? Like we can go and take the books now? That वही have to ask the center because वैसे rules of Maharashtra के accordingly 15 तारीख तक नहीं कर सकते. तो if any center manager is brave enough to go, then you have to coordinate with them. Or if you can wait till 15th of this month, then इसके बाद तो खुल जाएगा. कोचिंग भी खुल जाएगा कि सिर्फ नॉर्मल खुलेगा? नहीं, not for you. तुम्हारे लिए नहीं, बस दरवाजे खुलेंगे. नॉट क्लासेस अभी नहीं खुल पाएंगे. क्लासेस खुलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहेगा. तुम लोग घर पे रह रहे हो कि बाहर घूमने जा रहे हो आजकल? घर पे. खेलने जा रहे हो क्या नीचे फुटबॉल? नहीं सर, 1.5 साल से घर पे. हाँ थोड़ा जाना. आज भी थोड़े दिन कम करो तो अच्छा है, बिकॉज I have read it in news only in Maharashtra that the students are also getting infected. Yes sir.
like डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है। suddenly the positivity rate of children is increasing. I'm counting you guys as children only, but okay. How old are you guys? Like 15 years? 16 16. 15, 16. Okay, चलेगा 2 साल और उसके बाद फ्रीडम मिल जाएगा। सर इंडियन पेरेंट्स फ्रीडम नहीं देते। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली हम लोग ने भी आईआईटी वगैरह इसीलिए किया था क्योंकि उसमें हॉस्टल कंपलसरी रहता है, तो घर से दूर जा सकते करके हमने किया था। एटलीस्ट ड्यूरिंग माय टाइम आई एंड माय फ्रेंड्स डिड, बिकॉज जल्दी जल्दी घर से दूर जाएंगे और थोड़ा इंडिपेंडेंसी आ जाती है। और आईआईटी में हॉस्टल कंपलसरी रहता है? यस हॉस्टल इज कंपलसरी इन आईआईटी। और सर फिर वहाँ पे तो सब कुछ खुद करना पड़ता है ना, तब पछतावा होता है। सब कुछ मतलब कपड़े धोना एक खुद करना पड़ता है, बाकी वो भी मतलब वॉशिंग मशीन रहता है। सर कपड़े हाथ से धोना है? नहीं वॉशिंग मशीन रहता है, दैट्स ऑल। और बाकी खाना वाना तो मेस रहता है, और कुछ खुद से करना नहीं पड़ता। लाइक खुद सर से आईआईटी बॉम्बे के कैंपस पे गए हो ना? आईआईटी बॉम्बे के कैंपस हाँ गया हूँ ना, क्यों? सर आप कौन सी आईआईटी में थे? मैंने आईआईटी गुवाहाटी से किया है। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए जो बॉम्बे है, तो सर उसके लिए भी हॉस्टल चाहिए क्या? इतना नजदीक है तो? हाँ हॉस्टल तो कंपलसरी है, बट यू कैन गो होम ऑन वीकेंड्स एंड ऑल। मतलब हॉस्टल मतलब क्लासेस वही होते हैं ना यार, हॉस्टल से पास में होते हैं क्लासेस, तो कौन घर से बार बार जाएगा ट्रैवल करके। सो इट्स एन अनदर। हॉस्टल से निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती होगी? नहीं कुछ नहीं, कोई परमिशन नहीं रहता वहाँ पे, कोई परमिशन कुछ नहीं है। कोई वार्डन नाम के लिए होता है, कोई नोबडी इज गोइंग टू लाइक आस्क यू एनीथिंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। रात को कितने भी बजे जाओ, कोई नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। तो वही थोड़ा सा फ्रीडम ज्यादा रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। आईआईटी सर मोर फेमस बिकॉज लेबोरेटरीज वगैरह बहुत अच्छे हैं, लैब्स लाइक स्पेशली जैसे जो इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी से किया था, तो बायोटेक्नोलॉजी में जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है, एक इक्विपमेंट का कॉस्ट जो है 1 करोड़ to 2 करोड़ के बीच में रहेगा एटलीस्ट। तो दोज इक्विपमेंट्स वी स्टूडेंट्स आर बीन गिवन द कीज ऑफ द लैब एंड वी कैन गो डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नाइट। रात के 2 बजे जाके भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो ये सब फ्रीडम जो है बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलता है। तो सर पर बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी तो नीट के लाइन में आएगा ना? नहीं यार, इट इज इनटू बोथ ऑफ देम, दोनों का मिक्सचर है वो। लाइक बायोटेक्नोलॉजी में लाइक कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस में बेसिकली बाइनरी कोड 0 1s के ऊपर डिस्कस करते हैं। एंड बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू AGCT करके रहता है। आई डोंट नो डीएनए में तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? एडेनाइन गुआनाइन। हाँ यस, डीएनए में जो भी रहते हैं तो AGCT इन चारों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो ऑल दैट इज वेरी लाइक चैलेंजिंग ओनली एंड इट इज आल्सो फन, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड लाइक जैसे कि हम लोग जाते थे, बैक्टीरिया का कलर वाइट था तो हम लोग वाइट को ब्लू करते थे, लाइक वाइट को फ्लोरेसेंट कलर करते थे, लाइक चेंजिंग कलर्स, क्लोनिंग थिंग्स, मतलब ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन फन। मतलब तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तो मतलब ठीक है, मजा आएगा। लाइक यू गाइस कैन डू इट, मतलब तुम्हारे पास लैब है, इक्विपमेंट्स है एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। तो अभी राइट नो आइडिया कुछ नहीं आएगा, बट स्लोली घर पे खाली बैठे धीरे धीरे कुछ आइडिया आएगा एंड यू कैन जस्ट गो फॉर इट। तो इसीलिए इनोवेशन वगैरह ज्यादा होता है वहां पे। मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तो नॉन पढ़ाई की बातें भी, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स एंड ऑल दिस, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज्यादा करवाते हैं। लाइक टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ 100 people एट ए टाइम, टॉकिंग मतलब हर महीने सेमिनार कंडक्ट करते हैं, यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ 100 to 200 people। तो ऑल दीज थिंग्स रेगुलरली होता रहता है, तो थोड़ा सा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। सो दैट इज व्हाई IITs आर मोर फेमस, नॉट जस्ट फॉर स्टडीज। ओके, और बताओ, और कुछ पूछना है क्या, और शुड वी कंटिन्यू? कंटिन्यू करें क्या? ठीक है, कंटिन्यू सर। ओके चलेगा। See, this was the question. We have to prove that cot A into cos A divided by cot A plus cos A equals to cot A minus cos A upon cot A into cos A. Okay, now what I wanted to show here is, unlike the school level,
जिसमें हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ही प्रूव करना है। यहाँ पे हम लोग जो है प्रूव दैट क्वेश्चन सर, जस्ट हम लोग प्रूव दैट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुम्हारा जो भी सीईटी एग्जाम हो, जेई एग्जाम हो और बिट्स हो या एनी एग्जाम, इट इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जिसमें ABCD ऑप्शंस आएंगे। तो प्रूव दैट क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू कम फॉर यू। द रीजन व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग प्रूव दैट क्वेश्चंस इज बिकॉज सो दैट तुम लोगों को मैनिपुलेशन सीखने को मिल जाएगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कब कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। वो द होल मोटिव ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इज दैट इज द मोटिव। ओके, नाउ so what I'm trying to say is, to solve this question, one can do it like this. We can cross multiply and cot A into cos A again multiplied with cot A into cos A. तो क्या हो जाएगा? Cot square A cos square A. I hope you are understanding this. Yes. Is equals to cot A plus cos A into cot A minus cos A, which is basically right hand side A plus B into A minus B, A square minus B square होगा, which is cot square A minus cos square A. Okay, so instead of proving the given question, we can manipulate the question and we can choose to prove this question. You can choose to prove this particular question. That is allowed in 11th standard, 12th standard. In fact, आगे कोई भी engineering में कभी भी you can choose to prove. ये स्कूल में अलाउड नहीं था, मार्क्स नहीं थे, लेकिन स्कूल की बात मत करो। हाँ बोलो। हम लाइक आपने जैसे RHS की डिनोमिनेटर को इस साइड लेके मल्टीप्लाई किया, तो हम लाइक कर सकते हैं वैसे। हाँ, वही मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं। तो बिकॉज ये करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट होगा ना, तो ऐसे कर सकते हैं। बस ये इसको एक्सेप्ट कर लो, जस्ट डाइजेस्ट इट कि ऐसे कर सकते हैं। वी कैन मैनिपुलेट द क्वेश्चन एंड ऑल्सो ये भी अलाउड है कि लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई किया और अटक गए तो रोक दो वहां पे। राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और दोनों भी सेम आ गए तो भी करेक्ट है। दैट इज ऑल्सो अलाउड। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड जाना है। स्कूल की तरह ऐसे बंधे मत रहो। यू कैन जस्ट हैव ए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग। ओके, दैट इज yes, that is fine Akshat. Okay, now इसको प्रूव करना enough है। अभी इसको प्रूव करने के लिए one of the ways which I am doing is, अभी what I am going to do is left hand side cot square A into cos square A। अभी cos square A को और कुछ लिख सकते हो क्या? Sir, we can convert cot square A into cos square upon sin square A. Yes, that is correct. I am solving one of the methods and there are many multiple methods. I am solving one of the methods. I am going to write cos square A as 1 minus sin square A. I'm going to write cot square A as 1 minus sin square A because cos square A plus sin square A is 1. Okay, if I open up the brackets, cot square A into 1, which is cot square A, minus cot square A into sin square A. Cot square A into sin square A. Okay, अच्छा और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? cot square A को as it is रखा, cot को क्या लिख सकते हो? cos upon sin. cos upon sin, तो cos square A by sin square A, फिर into sin square A ऑलरेडी है, तो क्लियरली sin square A कैंसिल होके this will become cot square A minus cos square A, hence proved. So that is one way to solve this question. So we can indeed do this. So keep an open mind that you can do it like this. एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसको भी मैनिपुलेट करके बहुत इजी हो जाएगा। पहले इस सॉल्यूशन को फटाफट कॉपी कर लो एंड लेट मी नो। Sir, can we convert cot square into cos square upon sin square? Yes, जरूर कर सकते हो। अक्षत was also आकाश was also saying the same thing. cot को cos by sin लिख के न्यूमरेटर में cos power 4 आएगा। हाँ सर। Yes, उसके बाद भी कर सकता है। cos power 4 को cos square whole square लिख के फिर 1 minus sin square whole square लेके कर सकता है। Okay, जल्दी copy down fastly. You can do you can simplify left hand side a little, right hand side a little, and then also try to say that both of them are equal. So basically today is the last lecture जो 10th class के basis पे है, जिसमें हम लोग trigonometric identities कर रहे हैं। Next class से हम लोग नई चीज पढ़ेंगे जो 10th में किसी ने नहीं पढ़ा trigonometry में। So next class onwards all the new things will start. हो गया सर। हो गया?
Should we do next sum? Yes, sir. Should I erase everybody in the class? Sir, please wait. Okay. डिस्कॉर्ड पे स्टूडेंट चैट पे बहुत बातें करते रहते सब लोग, ये सारी चीजें, रैंडम चीजें, एनिम, स्पोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स दे टॉक. तो यू गाइस कैन इंटरेक्ट विद देम आल्सो एंड आस्क कि क्या क्या पढ़ रहे हो, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, व्हाटएवर. सर इधर कॉट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, कैसा? ब्रैकेट्स ओपन किया, कॉट स्क्वायर है इंटू 1, फिर कॉट स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है, ब्रैकेट्स ओपन किया. अच्छा. हो गया क्या? लिख के नेक्स्ट सम करें? हाँ सर. ओके, एक और सम करते हैं. एसएलओनी बुक है ना सबके पास? हाँ, वो प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट 1 अपॉन, हाँ बोलो. करें तो पूरी बुक करनी है? नहीं नहीं नहीं, आई कीप टेलिंग यू, वो चीजें करो. एसएलओनी इज अ जनरल ट्रिग्नोमेट्री बुक, जो दुनिया में सब लोग ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट वहां से पढ़ के रहेंगे, तो उसमें से आईआईटी रिलेटेड थोड़ा सा ही है, सिर्फ वो चीजें करो. बाकी उसमें बहुत सारा इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन है, वो अपने को अभी के लिए यूज नहीं है. तो वो जो आपने आइडेंटिटी उसमें से बोली थी प्रूव करने वाली, वो शायद हमारे मॉड्यूल में भी है. कैन यू रिपीट अगेन? जो आपने आइडेंटिटीज बोली थी एसएलओनी में से जो प्रूव करने वाली, वो हाँ. शायद हमारे मॉड्यूल में भी सेम है. हाँ, मॉड्यूल का इन चैप्टर भी वही से, यस, वही से कॉपी पेस्टेड है. इन चैप्टर एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन सारे वही से हैं. ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है. प्रूव दैट 1 by cosec a minus cot a minus 1 by sin a equals to 1 by sin a minus 1 by cosec a plus cot a. You have to prove. सर इसमें ऐसा कर सकते जैसा आपने बोला था कि दोनों को थोड़ा थोड़ा करते. यस, जरूर कर सकते हैं. 1 minus sin है. सर कंप्लीटेड हो गया. वो वेरी फास्ट. जो एसएलओनी का जो बुक है उसमें सब चैप्टर है कि सिर्फ ट्रिगो के लिए? सिर्फ ट्रिगो के लिए है. ठीक है. उसका पीडीएफ फाइल है मेरे पास. आई विल फॉरवर्ड इट. आई डोंट नो इफ आई हैव फॉरवर्डेड इट ऑलरेडी और नॉट. वैसे डिस्कॉर्ड में भी बुक्स के अंडर भी है. हाँ सर, आपने ग्रुप पे फॉरवर्ड किया. हाँ, ग्रुप पे भी किया होगा. ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन भी मैं नई चीज दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं. कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे किया? निहार, मानस और सर बाय रीअरेंजिंग इट. वेरी नाइस. हाउ आर यू रीअरेंजिंग इट? सर 1 अपॉन cosec a plus cot a को LHS पे डाल दिया. ओके, इसको LHS पे डाल दिया और 1 minus 1 upon sin a को RHS पे. ओके, देखो वैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू. 1 by cosec a minus cot a plus 1 by cosec a plus cot a is equal to, ये 1 by sin a राइट साइड चलाएगा, 1 by sin a plus 1 by sin a. तो अभी हम लोगों को ये प्रूव करना काफी है. रीअरेंज कर लिया हमने
राइट हैंड साइड का माइनस वाला लेफ्ट साइड लिया, इसको राइट साइड लेके, इसको सॉल्व करेंगे तो काफी है। राइट हैंड साइड सबसे पहले इजी है, 1 बाय sin a प्लस 1 बाय sin a कितना होगा? 2 by sin a. 2 बाय sin a। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे मैनिपुलेट करें? LCM. एलसीएम। ओके, ट्राई और हम साइन चेंज कर लेते हैं ना। सर यहाँ पे कैसे साइन चेंज होगा? साइन चेंज नहीं होगा, देखो कोसेक माइनस कॉटे का कॉटे माइनस कोसेक होगा, साइन चेंज करेंगे, या कॉटे माइनस कोसेक नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैन यू टेल मी? 2 cosec a upon 1. यस यार, सो कोसेक ए प्लस कॉटे प्लस कोसेक ए माइनस कॉटे होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा? cosec square a minus cot square a. Yes, denominator में cosec square a minus cot square a. I am writing it in much more detail because initial classes है. Okay, now ये देखो, what he saying is numerator में cot a cancel हो जाएगा, cot a cancel हो जाएगा, cosec a add होके numerator में आ जाएगा 2 cosec a, और denominator में देखो a minus b into a plus b फॉर्मूला लग रहा है, a minus b into a plus b क्या होगा? a square minus a b square minus b square. a square minus b square इस क्वेश्चन में हो जाएगा cosec square a minus cot square a. Now cosec square a minus cot square a is very very famous. क्या होगा? 1 ये है 1। फिर cosec a को क्या लिखेंगे? 1 by sin a. 1 by sin a. Hence proved. इस तरीके से we can rearrange it and prove it also. Okay, just write it down once again fastly. What I'm trying to show you guys is you can rearrange it and solve it. Somebody else also pointed out कि हम लोग इसको 1 by sin, इसको cos by sin लेके आधा सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को आधा सिंप्लीफाई करके भी प्रूव कर सकते हैं। यस निहाल? हाँ Sir, we can do it by rationalizing both the sides. Yes, we can do rationalizing also both the sides. जरूर कर सकते हैं। गुड वन। सर हम लोग सर हाँ बोलो। तो हम लोग स्कूल की तरह इसमें आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में लिखना वो सब जरूरत नहीं है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है तो एनफ है। हाँ तो हम लोग से ऐसे ही लिख देंगे तो ऐसा कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं कटेंगे ना? नहीं ना, मार्क्स नहीं सर ना, वो भी लिखना इम्पोर्टेंट है ना, दैट मार्किंग cosec square a minus cot square is equals to 1. Why ब्रैकेट? जरूरत ही नहीं है, नो नीड एट ऑल, जीरो नो नीड एट ऑल। तो तुम लोग उसके ऊपर लोड मत लो, बस तुम लोग मैथमेटिकली करेक्ट कर रहे हो क्या वो चेक कर लो। सर हाँ, हमें ये 1 अपन कोसेक a माइनस कॉट है, फिर 1 प्लस कोसेक a प्लस कॉट है, उसको भी हम उसको 1 अपन साइन a माइनस कॉस a अपन साइन नहीं कर सकते? उससे भी आएगा, कैसे भी तो आएगा। करके दिखाओगे एक बार? अरे बहुत टाइम जाएगा, तू ट्राई करना, ट्राई करके या सॉल्यूशन भेज, आई कैन चेक। सर मैं जितना के मैं उतना भेजता हूँ आपको। हाँ, आराम से फ्री टाइम पे ट्राई कर। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो थोड़ा एफर्ट डालो, 5-10 मिनट, मतलब नहीं आ रहा तो इमीडिएटली मत छोड़ दो। और कोई डाउट पूछ रहे तो भी ऑनेस्टली पूछो कि तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया, और अपना सॉल्यूशन दिखाओ, आधा सॉल्यूशन दिखाओ, फिर रिमेनिंग आधा मैं बताऊंगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, अरेस्ट कर दो ना ये भी। सर आप ट्रिगो के लिए और क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस के लिए? यस, क्लास खत्म होते टाइम मैं होमवर्क दूंगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। इसके चक्कर में ना तुम उन लोगों का मैनिपुलेशन वगैरह इंप्रूव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते, राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू, राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 times sin x minus cos x power 4 plus 4 times sin power 6x plus cos power 6x plus 6 times sin x plus cos x the whole square. Find the value of this expression. It's a huge question.
सर हाँ हो गया तो मैसेज Sin- करो ना। नहीं सर, एक डाउट था हाँ बोलो। सर। साइन एक्स और कॉस एक्स जो होल पावर 4 है वो साइन 4 और कॉस 4 लिख सकते हैं? तुझे ऐसा लगता है क्या? डू यू थिंक 2+7 और 2+3 होल पावर 4 इज 2 पावर 4 plus 3 पावर 4? डू यू थिंक सो? नहीं ना, मतलब नहीं है वो, समझा क्या? I don't know. I hope it is clear that you cannot do it. Okay. Yes sir, clear है. Okay. Now इन तीन पार्ट है क्वेश्चन में, तीन बड़े बड़े पार्ट है। इन तीनों में से सबसे इजीएस्ट कौन सा है? थर्ड वन। ओके, थर्ड वन, व्हाई इज इट इजी? कैन यू सिंप्लीफाई द थर्ड वन एंड टेल मी क्या होगा? सर 6 देन ब्रैकेट में sin square x plus cos पावर square इज x 2। a plus b whole square है फॉर्मूला। a plus b whole square we all know, a square plus b 1 square. plus 2x 2 sin x into cos x. Yes. Can anybody tell me others also? Anyone else? sin x plus cos x का स्क्वायर क्या लिखूं? तो 1 ही लिख दो ना, sin square plus cos square. 1 plus 2 sin x। करेक्ट, मैं 1 जरूर लिखूंगा 2 मिनट में। a square plus b square sin square plus cos square plus 2ab, मतलब 2 times sin x into cos x. So ये सिंप्लीफाई होके 6 times बनेगा sin square plus cos square को वो लोग कह रहे 1 लिख दो, which is correct. 1 plus 2 sin x into cos x. फिर इसके बाद we can of course open the bracket. 6 into 1 is 6 plus 6 into 2 12 times sin x into cos x. Okay. Now this is the third part which we did successfully. Third part has been simplified as much as we can. Okay. इन दोनों में से कौन सा पार्ट इजी है? सेकंड वाला। सेकंड वाला तो इनफैक्ट लकीली बहुत ज्यादा इजी है। कैन यू टेल मी क्या कर सकता हूँ सेकंड वाले को? तब 1 minus 3 sin sin square cos square. करेक्ट, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला था। 1 minus क्या 3 sin square x cos square. 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? Sir, is the answer 30? 4 और 12 हो जाएगा। Yes, correct Sanvi and the person who just said Nikhil, I guess, I don't know. Okay, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 minus 12 sin 4 minus 12 sin square x cos square x. This is also right. Okay. Now the first part, that's right Bhaumik. First part, power 4. Power 4 को ऐसा कर सकते हैं क्या? sin square x minus cos square x the whole square. Yes. फिर वापस the whole square. बाहर 3 है, 3 को छेड़ते नहीं है। अंदर sin x minus cos x पावर 4 है। पावर 4 है मतलब we can write it as whole square. पावर 4 का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट होल स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, तो पहली बार स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट टाइम स्क्वायर। लेट अस ट्राई टू डू दिस ओरली। कैन यू गाइस डू दिस ओरली? sin x minus cos x का होल 1 minus 2 sin पहले आएगा x cos x. दैट इज परफेक्टली करेक्ट। पहले आएगा a square plus b square, तो sin square plus cos square जो कि 1 हो जाएगा, minus 2 sin x cos x। फिर उसका स्क्वायर हमने एक बार स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, फिर से यूज करना पड़ेगा a minus b the whole square। जल्दी करो, स्पीड अप अदर्स, नाउ आई एम लैकिंग स्पेस ऑन द बोर्ड। जल्दी करना, a minus b the whole square, फिर 3b मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों चीजों को ऐड करना है। जल्दी करो, एटलीस्ट हाफ द क्लास शुड गेट द आंसर। जिसका आंसर आ गया जस्ट टेक्स्ट मी हियर सो दैट आई अंडरस्टैंड किस किस का हो गया। I got only 2 students who got the right answer so far. Sir. हाँ बोलो सृष्टि। So how come you changed the whole equation in this step? 4 into 1 minus 3 into sin square. ये तो किया था ना लास्ट क्लास में। sin power 6 plus cos power 6 is 1 minus 3 sin square cos square। याद नहीं है क्या? Okay, sir, I got it. Yeah, okay. Akshat, you are right. सर हाँ बोलो। सर ये जो फर्स्ट वाले का फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें हाँ। ऐसे लिख सकते हैं कि sin square x minus cos square x the whole square.
नहीं, स्क्वायर अंदर नहीं हो जाएगा, स्क्वायर ऐसे अंदर नहीं जाता, a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। a minus b the whole square is not a square minus b square. I hope clear है साक्षी। Yes, sir. Okay, जल्दी करो स्क्वायर, बाकी जल्दी करना एवरीबॉडी। दैट साइड सिद्धांत, पहले भौमिक बता रहा था कि आंसर आई डिडंट रियलाइज बट या यू सेंट मी। हाँ सर। Manus, you are right. ओम जोशी, समझ में आ रहा है ना? यस सर। और थोड़े लोगों ने बात ही नहीं किया आज, हर्ष, जगदीश, माहिर, आर यू हियर? Sir, actually I'm using my data today which is really slow, so I'm avoiding to. Okay, no problem. You guys can see the video also. That's right, नियति। मनोमय, तू हर बार बात नहीं करता है, ask then you yes. That's right, Khushi, good one. Nihar, no, you are far away from the answer. I am curious, how did you reach there? दो निहार है, is it the same student or different? Different. Okay. Piyush, Praneeth, Raj, are you guys understanding? And there are two Sakshi. Are you both different? Sakshi with double I and single I. देखना स्वयं, sin x माइनस cos x का स्क्वायर करेगा तो पहले sin स्क्वायर आएगा, पहले सिर्फ इतने वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर, sin x माइनस cos x का स्क्वायर, तो सर वो समझ गया, फिर नेक्स्ट वाला स्टेप में 1 माइनस 2 वाला, फिर से a माइनस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला। सर तो फिर वो a स्क्वायर तो 1 आएगा, हाँ, b स्क्वायर आएगा क्या सर 4 sin square x cos square x, करेक्ट, 4 sin square x cos square x, करेक्ट, और 4 sin x cos x, हाँ, माइनस 4 sin x cos x, हाँ ठीक है, तो माइनस 4 sin x cos x, हाँ बस यही है, इतना ही है, फिर 3 मल्टीप्लाई कर। सर मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें। हाँ, 3 प्लस 12 sin square x cos square x माइनस 12 sin x cos x, ऐसे आएगा। तीनों चीजें आ गई, तीनों को ऐड करना ही काम है। निहार देखना क्या मिस्टेक कर रहा है। अरे हाँ बोलो। नहीं तेरी वॉइस क्लियर नहीं है, व्हाट आर यू आस्किंग? नहीं सर, कुछ नहीं। यश जयेंद्र नायक, आर यू हियर? सूर्या, श्रेयांश, संजीवनी। Sir, can you tell the answer, please? Can you text me and I can confirm yes or no? Text me as in here Zoom पे। Yes निहार, you are right. तुझे क्या आंसर आ रहा है, तू बता। इतनी देर टाइप करने में जा। रिशांक, करेक्ट। Vrishank or Rishank, how do you spell your name? Can you just unmute and tell once? Sir, Vrishank. Vrishank, okay. That is right, Sania. Were you the one who was asking just now? Okay. I don't know, नीचे का पार्ट दिख रहा है क्या तुम लोगों को?
Are you able to see the last line? Yes, sir. Sorry. हाँ, ओके तो अभी तीनों को ऐड करना है यार, बहुत इजी है। या प्लस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 13 होगा ना। यस, माइनस 12 साइन एक्स प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 + 4 + 6 which is 13. So 13 is the final answer. That's right, Manav, Shushti. Confident raho. Sanya, you're right, yeah. Okay. Is this clear, everybody in the class? Yes, sir, clear. Okay. चलेगा। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। वंस अगेन होमवर्क देता हूँ, राइट डाउन। शुड आई वेट? किसी को लिखना है तो जल्दी लिख लो। ओके, बता दो होमवर्क। आई एम जस्ट वेटिंग यस और नो कंफर्मेशन। हो गया क्या? नहीं। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। एसेलोनिका वो है क्या? बुक तो है ना सबके पास? ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इट, राइट ऑन दिस थिंग। एक सेकंड, आई विल जस्ट चेक एग्जांपल्स 5। डिड आई पोस्ट इट इन योर ग्रुप? Let me just read it. Yes, sir, you Yes, sir. posted that book. Yeah, Last time. yes, I just confirmed it. हाँ, and write down the homework here. You guys copy it down अच्छे से। और homework सब कुछ separate notes में कर रहे हो ना? Yes, sir. Okay. So is it okay if we do the homework in the same book? It is fine. It is just that whenever you have doubt after a few months, you should be able to find where your homework is. तो सर हम लोग पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे होमवर्क। हाँ जरूर, that is a smarter thing to do. Okay, examples पे मैंने last time कहाँ तक दिया था याद नहीं है, 17 तक दिया था 17. शायद। Okay. हाँ, sir. Now question number 18 to 30, these are more lengthy than the initial 17 questions, और इसके hints have also been posted. Don't just straight away look the hints, so sincerely कर लो थोड़ा सब, ठीक है? और example 7, example 7, will you be able to find the examples? Yes, sir. This page 38 from book, not from the PDF, from the book. Example 7, question number 1 से लेके in fact full. Okay, example 7 is mainly focused on substituting the values, sin 30 degrees, tan 45 degrees, like all these values, especially SAD and other IGCSE students, especially you guys, it is important for you guys to solve example 7. For others also, you just have to increase your speed. Sin 60 degrees, cos 60 degrees, ये सब values याद है ना सबको? नेक्स्ट क्लास में पक्का रट के आना sin 30 degrees का वैल्यू। लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30 degrees? एनीबॉडी? COT cot 30 degrees, Not defined. what is the value cot 30 degrees? Not defined. No, sorry, wrong. √3. 1/√3. Sir, under √3. √3 is the right answer. √3 is the right answer. अभी ऐसे ना फट से वैल्यू स्पीड बढ़ानी है। लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30 degrees? 2/√3. 2/. Okay, cosec 30 degrees? 2. मतलब गुड दैट यस। सृष्टि एग्जांपल 7 ही नहीं, एग्जांपल्स 5 के ये 12 सम भी, 12-13 सम भी, ठीक है? ओके, दिस इज द होमवर्क है। एग्जांपल्स 5 के हिंट, एग्जांपल्स 5 से प्रैक्टिस करो, थोड़ा आइडेंटिटीज का मैनिपुलेशन सीख लोगे। एग्जांपल 7 से वैल्यूज याद हो जाएंगे और सिंप्लीफिकेशंस भी क्लियर हो जाएगा सबका।
Okay, we'll complete the class for today. Next class we are going to study something new. Just be prepared with all the values. सर एक बार एग्जांपल Okay, sir. था होमवर्क रिपीट करोगे? सर एग्जांपल पे लिखा है 5 ना? में आपने जो सम किए वो वापस करने हैं। Examples 5 में 1 से 17 ही दिए थे शायद लास्ट टाइम मैंने। नहीं सर, आपने कुछ सम अभी कराया है क्लास में। हाँ, वो जरूरत नहीं है। Examples 5 के 2 या 3 सम मैंने आज क्लास में कराए थे। 24 and 23। Yes, thank you. वो वापस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। Thank you, sir. Have a nice day. Yes, bye guys. Thank you for being interactive today. Thank you, sir.